Good morning viewers. Today we are going to start chapter number 10 for class 10th. The name of chapter is circles. Chapter number 10, and today we are going to do exercise 10.1. But before then we are discussing about what is circles and what is tangent. Okay, what is circles? दिस इज ऑल अबाउट सर्कल्स. सर्कल्स के बारे में हमने पहले भी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी थोड़ा देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बेसिक सर्कल्स नहीं पढ़ेंगे, हम सर्कल के नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे. राइट, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट इज सर्कल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कल्स? सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट which are fixed from which are equidistant from a fixed point, right? That fixed point is called center of the circle, and also the fixed distance is called the radius of the circle, right? Okay, this is the circle, this is the group of points from a fixed point, equidistance from a fixed point, and this fixed point is called center, and this fixed distance is called radius, right? सर्कल एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है. उस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं और वो निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है. इंग्लिश में सेंटर और रेडियस, राइट? बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ए लाइन and a circle. A line is also two-dimensional figure. Circle is also two-dimensional figure. We have three cases. In first case, we have a circle and we have a line. Is there any relation between circle and this line? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन आपको श्योर है? Situation number 2, a circle and a line. And third situation is circle and a line. In first situation, you can see circle and line do not intersect each other, right? In second situation, this line touches the circle at a single point, and in this situation, line intersect the circle in two different points. Okay, line circle have no relation. When a line touches a point of a circle is called tangent. Tangent to a circle. जब कोई लाइन किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकलती है तो हम उसको बोलते हैं उसकी टेंजेंट, राइट? एंड इन दिस सिचुएशन ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ए टू पॉइंट. दिस लाइन इज कॉल्ड secant. And in 10th class our topic is tangent to a circle. Okay, what is tangent? Tangent is a line who touches a circle at a point, and this point is called point of contact. This point is called point of contact. Point of contact कहलाता है वो पॉइंट जहां पे सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, राइट? Now we have theorem 10.1. What it says? The angle between the radius and the tangent is 90 degree. Theorem says we have to prove the angle between the radius, you know radius, the distance from center to the circle, and if the point is the point of contact and this is the radius, so this angle is 90 degree. This is the theorem number 10.1. तो थ्योरम में क्या है? एक टेंजेंट और एक रेडियस, इनके बीच में 90 डिग्री होता है. ओके, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं. एक सर्कल है, राइट? ये उसकी टेंजेंट है. ओके, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द टेंजेंट, इस सेंटर से लेकर टेंजेंट तक की आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, तो वो कहाँ होगी? वो यहां होगी या वो यहां होगी? दिस वन. एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज
perpendicular distance. That is why the angle between radius and the tangent is 90 degree. Right? Now come to the exercise. तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 10.1 एंड द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज इज हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव. एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं. तो इसका आंसर हम एक फिगर से देंगे. देखिए ये हो गया सर्कल, यहाँ से एक टेंजेंट हो सकती है, यहाँ से एक टेंजेंट हो सकती है, यहाँ से एक टेंजेंट हो सकती है, यहाँ से ऐसे टेंजेंट हो सकती हैं. तो आप जानते हैं सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट. जब सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो हर एक को एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो तो हर एक से ही एक टेंजेंट जा सकती है. सो द नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर आल्सो इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट tangents can be drawn to a circle. A circle can have infinite tangents. So our answer is infinite. Right. Next, second sum. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in how many points? One point. Tangent केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या टच करती है. आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कोई सर्कल है, उसके किसी एक पॉइंट को जो टच करेगी वो उसकी टेंजेंट कहलाएगी. राइट. सेकंड पार्ट, ए लाइन्स इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड. एक लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड सीकेंट. नेक्स्ट, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. किसी सर्कल में टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स? पैरेलल टेंजेंट. टेंजेंट की बात नहीं हो रही, पैरेलल टेंजेंट की. इट्स 2. हाउ? लेट दिस इज ए सर्कल. तो अगर आप ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले रहे हो तो यहां से ये टेंजेंट निकल गई और इसके पैरेलल इस पॉइंट से निकल जाएगी. सो आवर आंसर इज 2. कम टू द फोर्थ पार्ट. द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. टेंजेंट का पॉइंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. The third sum of exercise is a tangent PQ at a P of this circle of radius 5 cm meet a line through the center O, a point Q, so that OQ is 12 cm and the length of PQ is 12 cm, 13 cm or 8.5 cm or 119 cm, square root 119 cm. क्वेश्चन में है ए टेंजेंट PQ. हमारे पास एक टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P. उसका पॉइंट P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल. सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर. एक लाइन को मीट करती है जो सेंटर से जा रही है. कहाँ मीट करता है? Q के ऊपर मीट करता है. सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. आइए फिगर से समझते हैं और ज्यादा क्लियर होगा. वी हैव ए सर्कल. That this is the P point of contact. तो यहीं से हमारी टेंजेंट पास हो रही है. राइट. तो एक तरफ इसको आगे बढ़ा लेते हैं. ओके. ये किसी लाइन को मीट करती है जो सेंटर से पास हो रही है. सेंटर है इसका O और कहाँ पे मिल रही है? ये Q के ऊपर मिल रही है. राइट. एंड वी हैव OQ इज 12 सेंटीमीटर. OQ इज 12 सेंटीमीटर. राइट. एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. चलिए इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी रेडियस 5 सेंटीमीटर. एंड यू नो दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री. ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, जैसा कि आपको थ्योरम 10.1 में बताया गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड PQ. वी हैव टू फाइंड PQ. और इसके लिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं. 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर. ओके, सोल्व करते हैं. सो कम टू दिस सॉल्यूशन. In a triangle OPQ, angle P is 90 degree. Why it is 90 degree? Because it is the angle between the radius and the tangent. Angle between radius and the tangent. आप reason लिख सकते हैं इसके लिए. Now, if you have a triangle, it is right angle triangle, so you can use Pythagoras theorem. So, according to Pythagoras theorem, OQ square is equal to PO square plus PQ square.
90 डिग्री के सामने होगा हाइपोटेन्यूज, अपोजिट टू द 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट कर देंगे। OQ इज 12 स्क्वायर, OP इज 5, OP क्या है यहाँ पे, रेडियस है, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, PQ स्क्वायर जो हमें निकालना है। सो दिस इज स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 प्लस PQ स्क्वायर। 25 ट्रांसपोज हो गए, इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, सो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, इट इज 119 एंड PQ इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट, सो दिस इज स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। हियर वी कैन राइट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, उसमें हमें लगता है कि एक 5 सेंटीमीटर दिया है, एक 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या कहते हैं कि थर्ड साइड क्या होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ देखने की बात है, हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, हमें बेस निकालना है। सो आवर आंसर इज स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर।